Good afternoon, everyone. In last lecture, we have finished our control strategies. Okay, in that we have seen what is mean by control strategy and different types of the control strategies. Okay, there are mainly classified into two types. First is the heuristic and non-heuristic, or we can say that informed search technique, and second one is the uninformed search technique. In that, first we have started uninformed search technique. In that, we have studied two type of search technique. One is the depth first strategy and birth first search. With these two search technique, last time we have seen. Okay, just we will go through what we have seen in last lecture, and after that we will go remaining part of this chapter. Now we start with problem solving techniques. In that, there are general problem solving techniques. There are two types of general problem solving techniques, which are those. First one is the production system, and second one is the state space search. Okay, these two techniques we have discussed and how to use that with the help of problems we have discussed. Means we have taken the problem of water jug and the machineries and cannibals problem. With the help of that too, we have understood how to solve that. Okay, in last lecture we have seen. Next, exhaustive search technique. In that, okay, it is under the part of, we can say that it is non-heuristic search technique and heuristic search technique. Okay, with the help of non-heuristic means uninformed search technique, with the help of that, how to find the solution with the help of depth first search technique and birth first search technique we have seen in the last lecture. Okay, the remaining part is the heuristic search technique. In that, there are three different techniques we will discuss today, and will end mostly 90% of our this unit: branch and bound search, hill climbing, and best first search technique. We will discuss these three techniques or maximum two techniques in this lecture, and we will finish our this unit. Okay, just I will go to the last part of this one. Okay, we have first exhaustive search. In that, first technique we have seen in last lecture, depth first technique. In this depth first technique we have discussed, suppose you have any problem, and we can say that start goal or initial state and the goal state. Initial state means we can say that problem definition, and goal state is we can say that okay solution of that प्रॉब्लेम. एक प्रॉब्लेम आहे आणि त्याचं तुम्हाला सोल्युशन फाइंड आउट करायचं असेल तर त्या केस मध्ये ओके इन दॅट केस देर इज अनइन्फॉर्म और there is no information available for us. Okay, in that case how can find any solution we have discussed last time. Okay, in that the first technique is depth first technique. In that, okay, we can choose possible solution at initial state. Okay, suppose A is the one problem. For this there is three solutions. Okay, I have drawn here different branches. On that branches I have written the solutions: B solution, C, D, and again B having the number of solutions like E, F. These are the two solutions of B, and C having the one more solution, D having one more solution. Means if with the help of depth first search I can take only one branch, and with respect to that only I will find the solution. Okay, आता सुरुवातीला काय करणार आहे तर I will take this first branch A to D. I will travel. After that D to H I will travel, and if I will not get the solution,
then it will move to the backward point. Okay, means backward solutions means H to the directly it will move to A point. And after that, it will check the another solutions of B and further goes on. Means it will take one solution up to the depth of that level and it will check the possibilities of that solution. Okay, this one is the, you can see here with the help of this algorithm, you can write the your logic like if else statement. With the help of that if else statement, you can write the this logic, and this is used in our artificial intelligence. With the help of that, we can solve the problem. Okay, this one is the depth first technique. Second one, we have seen advantages, disadvantages of that depth first technique. Next one is the birth first technique. In birth first technique, we can check the solution level to level. Means you can see here in this diagram. This one is the first level, second level, or the zeroth level, or initial state. This one is the initial state, and K is the goal state. This one is the problem, K is the solution. हा प्रॉब्लेम आहे, हे जर K हे सोल्युशन आहे. मग ह्या ठिकाणी बर्थ फर्स्ट टेक्निक मध्ये काय केलं तर त्या ठिकाणी तर तुम्ही जर ह्या ठिकाणी बघितलं असेल तर डेप्थ फर्स्ट मध्ये तर इट विल चेक इन डेप्थ ओनली. ओके, इट विल चेक द ब्रांचेस one by one with depth level. But in this case, in birth first technique, it will check in level to level. Okay, means it will start from the zero. After that, it will check the possible solutions A and B. After that, next solution, it will check C, D, G, H. After that, it will move to the E, F, I, and at last, it will check the K solution. Okay, means number of iteration we have to perform in birth of first technique more as compared to the depth of first. But you can see here, if I found the solution in one branch only, it cannot further process. But here in this search technique, we have to check level to level, and each level we have to check one by one. Okay, each node and each branch we have to check inside that. प्रत्येक नोड आणि ब्रांच आपल्याला त्या ठिकाणी चेक करायचे. ओके, नेक्स्ट. ओके, सम ऍडव्हांटेजेस, डिसएडव्हांटेजेस वी विल डिस्कस. ऍडव्हांटेजेस ऑफ बर्थ फर्स्ट इज गॅरंटेड टू फाइंड अन ऑप्टिमल सोल्युशन. ह्यामध्ये काय आहे तर with the help of this birth first technique, search technique, we can find optimal solution, guarantee. Okay, we can provide the guarantee to the user. We can find the optimal solution in birth first. But if you see in depth first search, we cannot guarantee it. Okay, we can find the optimal solution. Means short solution आपल्याला मिळेलच असं आपण त्या ठिकाणी आपण म्हणणार. परंतु ह्यामध्ये जर डेप्थ बर्थ फर्स्ट सर्च मध्ये जर बघितलं तर ह्या ठिकाणी ऑप्टिमल सोल्युशन मिळणार, कारण की आपण प्रत्येक लेवल टू लेवल आणि ईच नोड वी आर एक्झिक्युटिंग, अँड ड्यू टू दॅट ओके वी कॅन फाइंड द ईच सोल्युशन. नेक्स्ट, डिसएडवांटेज, हाय स्टोरेज रिक्वायरमेंट एक्सपोनेन्शियल विथ द ट्री डेप्थ. ओके, म्हणजे त्या ठिकाणी काय असणार आहे तर स्टोरेज स्पेस वी रिक्वायर्ड हाय इन दिस बर्थ फर्स्ट, बट इन डेप्थ फर्स्ट वी कांट रिक्वायर्ड द such amount of storage. Means suppose one depth, one branch we can execute only that much amount of storage space we required, another space we cannot. But here in the birth first technique, each and every level we have to execute, and for that we require the more and more space. Okay, understood. Next, some difference between DFS and BFS. DFS stands for depth first search and BFS stands for birth first search. DFS is effectively when there is a few subtrees in the search tree that have only one connection point to the rest of state. म्हणजे हे काय म्हणतोय तर त्या ठिकाणी तर कम्पेअर जर केलं तर त्या ठिकाणी तर फक्त थोड्याच सब ब्रांचेस असतील तर हे DFS टेक्निक काय आहे तर इफेक्टिव्ह आहे आपण त्या ठिकाणी सांगू शकतो. म्हणजे इथं जर बघितलं तर yes having two branches only. Okay, it is possible if yes having the
10 branches or 1000 branches, then in that case it is difficult in the depth first search, or not effectively, we can say that. In birth, we can say that birth first technique is effective when the search tree has a low branch factor, means low level of solution if I get, then in that case this method, birth first technique, is useful. Next, depth first search is the best when the goal exists in the lower left portion of the search. We can search with the lower with one branch only in DFS, but in BFS can work even in tree that are infinitely deep. Okay, ह्या ठिकाणी भरपूर असं ह्या ठिकाणी जर बघितलं तर इन birth first, okay, the number of levels, no problem at all, we can find the solution. Okay, but here only if possible goal is one branch only, then easily we can find the solution. Okay, solution आपण त्या ठिकाणी find out. Depth first search can be dangerous when path closer to start and further from the goal has been closed. Means the paths, suppose this one is there, okay, number of branches, and here we can't find the goal, then we have to again repeat to the start from the origin, means there is certain level we have to follow. Okay, here in birth first search technique requires a lot of memory as number of nodes level tree increases exponentially. Okay, we have seen it consists of, it will check one by one node. Okay, for that we require the more and more memory. DFA is memory efficient as the path from start to current node is stored. Okay, we have discussed now only the each node, okay, in the DFS cannot be checked. If solution will exist, then it will move from that one. Okay, next one is the BFS gives optimal solution. Okay, म्हणजे BFS काय करणार आहे तर ऑप्टिमल सोल्युशन मिळण्याचे मिळणार आहे आपल्याला बर्थ फर्स्ट टेक्निक मध्ये, पण तो DFS मध्ये आपण त्या ठिकाणी मेन्शन करू शकणार नाही की whether we can get the optimal solution or not. Depth first search. Okay, we can say that DFS may not give optimal solution, but BFS give the optimal solution because BFS check the level to level, and this one check the branch to branch. Okay, this level from level we can get the, definitely we can say that optimal solution we can get in the birth first. This one is the difference between our DFS and the BFS. Okay, depth first technique and birth first technique. Now we'll move towards the next part is the heuristic search. Okay, now heuristic means what? We have to find, okay, we have know the some certain solutions to any problem. Okay, suppose 8 puzzle problem आहे, 8 puzzle problem सगळ्यांनी बघितलं असेल तर त्याचं आपल्याला सोल्युशन माहिती आहे. Okay, we have to move that path, we can reach to that solution. Means let's consider, okay, I will draw here. Okay, this one is the one P problem. I will write P problem, and here is the one solution. I will write here, here is the some solution. Okay, there is this problem having number of solutions, but with one step cannot be achieved. Okay, एका स्टेप ने आपल्याला माहिती आहे की मिळत नाही. Okay, suppose this one is the A solution, this one is the, I will write B solution, and this one is the C solution. Okay, now if you see carefully, okay, this A solution, okay, I will write this A solution, B solution, and C solution. To reach this solution I required, okay, from which I have to travel minimum distance from A, B or C. Okay, A पासून डिस्टन्स कमी लागेल का B पासून का C पासून सोल्युशनला रीच व्हायला. Okay, if you compare these three, okay, you will find from B, suppose this distance is
4 meter, there obviously from these and this one distance is larger. Okay, this one is, let's consider this is 5 and 6 or the 8 meter long, 5 meter and 4 meter. Means we know the solution. Okay, with certain steps we can find the solution. Okay, means we know the some information to reach the solution. That is nothing but heuristic search. Means if I know the solutions, okay, then we can go to the that desired part and we can achieve that solution with minimum cost or the minimum distance. Okay, minimum distance ne आपण त्या ठिकाणी achieve करू शकतो. Okay, now okay, this is about the heuristic. There are different methods. Hill climb we will discuss. First we will understood. Okay, one problem. Okay, famous problem of that heuristic search is salesman problem. Okay, where is that? I have written. Example of traveling salesman. A salesman has to visit a list of cities and he must visit each city only once. Okay, the salesman जर बघितलं असेल, ट्रॅव्हलिंग सेल्समन असेल तर त्याला काय सांगितलंय तर प्रत्येक सिटी त्याला काय करायचंय तर व्हिजिट करायचंय. ओके, देर आर डिफरंट रूट्स बिटवीन द सिटी. म्हणजे त्या प्रत्येक सिटीला जायला तर तुम्ही बघितलं असेल तर वेगवेगळे रूट्स तुम्ही त्या ठिकाणी बघू शकता. द प्रॉब्लेम इज टू find the shortest route between the city so that the salesman visit all the cities at once. Okay, means एक सेल्समन आहे त्याला काय करायचंय तर प्रत्येक सिटीला व्हिजिट करायचंय आणि प्रत्येक सिटीला फक्त एकदाच व्हिजिट करायचंय आणि प्रत्येक सिटीला हे काय असणार आहे तर वेगवेगळे रूट असणार आहेत. तर आपल्याला त्यातून एक शॉर्टेस्ट रूट त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं. ओके, कसं फाइंड आउट करणार? सपोज देर आर n सिटीज. ओके, त्याला काय म्हणतोय तर n number of cities are available for us. Then a solution would be to be n factorial. म्हणजे त्या ठिकाणी काय असणार आहे तर n सिटीज जर असतील तर त्याच्या पॉसिबल सोल्युशन किती असणार आहे तर n फॅक्टोरियल. सपोज 2 फॅक्टोरियल असेल तर किती असणार आहे तर okay, you can 2 into 1. Okay, means 2 possible solutions we have. Possible combinations to find the shortest distance to decide the required route. This is not efficient as n is equal to 10. There are 36,28,800 possible routes. ओके, जर n हे 10 घेतलं तर त्याचे पॉसिबल सोल्युशन बघू शकता तुम्ही किती येऊ शकतात तर these many possible solutions or the routes we can find. This is an example of combination explosion. There are better methods for the solution such problem. One is called branch and bound. Okay, first generate all the complete path and find the distance of first complete path. If the next path is shorter, then save it and proceed this way. Avoid the path which is its length exceed that save shortest path length, although it is better than the previous method. Okay, means what we can do, it will follow the branch and bound technique, and with the help of that branch and bound technique, it will take the first route, it will check the very shortest route, and after that it will go to the another branch, and after that again it will check the where is the shortest route. Means each level it will check the shortest route and it will find the solution. Okay, we will discuss this branch and bound technique separately. We have that. Now we will move towards the next heuristic search technique. Heuristic search technique is the criteria for determining which among several alternatives be the most effective to achieve some goal. Okay, जे एक पाथ आपण डिसाइड करणार आहे. ओके, पॉसिबल आता एखादा प्रॉब्लेम असेल. ओके, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला जर फाइंड आउट करायला सांगितलं तर तुम्हाला एक पॉसिबल सोल्युशन माहित असेल. सपोज तुम्हाला पंढरपूरला जायचंय, स्वेरी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग टू द पंढरपूर, यू वॉन्ट टू रीच. ओके, यू हॅव पॉसिबल सोल्युशन
I can travel from Sweri to the Gopalpur to the Pandharpur. Correct. Again, another possibility is, okay, another possibility काय म्हणू शकतो तर I will go to the Sweri to the Anavli to the Kasegav to the Pandharpur. This is another route. But we know, okay, आपल्याला माहिती आहे की जवळ रूट कोणता आहे. आपल्याला माहिती आहे की स्वेरी पासून पंढरपूरला जायला स्वेरी पासून गोपाळपूर पासून पंढरपूर गेलं तर जवळ आहे. परंतु हे जर त्या ठिकाणी बघितलं तर देर आर n नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्युशन, बट we know the from which route if I travel I can get the optimal solution. म्हणजे मला शॉर्टेस्ट रूट कुठला माहिती आहे की त्या थ्रू गेलं तर मला सोल्युशन लवकर मिळेल. ओके, म्हणजे माझ्याकडे असाही सोल्युशन आहे की मी अनवली जाईन, कासेगाव जाईन आणि पंढरपूरला जाईन, परंतु डिस्टन्स ट्रॅव्हल इज मोर ऍज कम्पेअर टू द गोपाळपूर टू पंढरपूर. ओके, लक्षात येते. म्हणजे मला माहिती आहे की पंढरपूरला कसं जायचं, म्हणजे आय नो सम इन्फॉर्मेशन अबाउट टू अचीव रीच टू द गोल ऑर द सोल्युशन. ओके, एखाद्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन काढण्यासाठी मला एक मेथड माहिती आहे, तर त्या मेथडच्या सहाय्याने आपण त्या ठिकाणी मूव्ह करू शकतो. दिस टेक्निक इम्प्रूव्ह द एफिशियन्सी ऑफ सर्च प्रोसेस पॉसिबल बाय सॅक्रिफाइंग काम्स ऑफ द सिस्टमॅटिक अँड कॉम्प्लीटनेस. ओके, it no longer guarantee to find the best solution but almost always find a very good solution. म्हणजे या ठिकाणी आपण म्हणू शकतोय की प्रत्येक वेळेस आपण गुड सोल्युशन किंवा बेस्ट सोल्युशन आपण प्रोव्हाइड करेल, परंतु प्रत्येक वेळेस आपण सांगणार नाही की हे गुडच किंवा व्हेरी गुड असेल असं किंवा ऑप्टिमल सोल्युशन आहे असं आपण म्हणू शकणार. आपण सोल्युशन तर प्रोव्हाइड करू, पण ते ऑप्टिमलच असेल काही ह्या ठिकाणी आपण ह्या ह्युरिस्टिक सर्च टेक्निकच्या सहाय्याने आपण सांगू शकणार. युजिंग गुड ह्युरिस्टिक वी कॅन होप टू गेट गुड सोल्युशन टू हार्ड प्रॉब्लेम्स सच एज ट्रॅव्हलिंग सेल्स प्रॉब्लेम. नाउ ओनली वी हॅव सीन is less than the exponential time. Okay, we have seen that part now. Okay, just I will show you how to use this technique. Okay, just I will play this. Just listen carefully. This will help you. Wait a minute. हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट्स मेंशन. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ह्यूरिस्टिक वैल्यू इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाई वी यूज द ह्यूरिस्टिक एंड हाउ टू कैलकुलेट द ह्यूरिस्टिक वैल्यू. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी टॉपिक्स आपको मिलेंगे जहां पे हम ह्यूरिस्टिक वैल्यूज को, ह्यूरिस्टिक फंक्शंस को यूज करते हैं. तो गाइस, इस वीडियो में हम तीनों पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ. तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तक आपने नहीं किया, प्लीज प्रेस द इंटेलिजेंस. ह्यूरिस्टिक का सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज के लिए अनुमान लगाना. मतलब हम एक काइंड ऑफ गेस या काइंड ऑफ क्विक सॉल्यूशन हम ट्राई कर रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए. जैसे अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हट के बात करूं, नॉर्मल हम मैथमेटिक्स में जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आपको कॉस्ट प्राइस दिया हो या आपको पूछा हो कि कॉस्ट प्राइस इज ट्वाइस द सेलिंग प्राइस, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. या फिर कई बार क्वेश्चन आते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज दिस, तो फाइंड आउट करो कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा अगर इतना टाइम आपको दिया हो. तो हम जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को. इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 100, मतलब लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू दिस और लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू दिस. तो वो हमें क्या कर रहा है, वो एक्चुअल में हमें हेल्प कर रहा है फाइंड आउट द आंसर क्विकली. आप उसके बिना भी कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें आंसर्स को क्विकनेस वे में फाइंड आउट करने में हेल्प कर रहा है. तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ह्यूरिस्टिक का यूज करते हैं. सो इट इज अ टेक्निक डिजाइन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम क्विकली. जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड सर्च के बारे में डिस्कस किया. तो अनइन्फॉर्म्ड में हम क्या बोल रहे हैं कि हम ब्लाइंड सर्च कर रहे हैं, मतलब हम प्रॉब्लम की सारी स्टेट स्पेसेस में जाते जा रहे हैं और जो स्टेट हमारी गोल स्टेट से मैच कर रही है तब हमारी जो सर्च है वो स्टॉप हो जाएगी. लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हमारी प्रॉब्लम है ना, जो एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो प्रॉब्लम जो है वो एक्सपोनेंशियली टाइम ग्रो कर रही है और हमारा जो टाइम है वो एक्सपोनेंशियल टाइम जो है वो हो सकता है. जैसे अगर हम 8 पजल प्रॉब्लम की बात करें ना,
सिंपल 8 पजल प्रॉब्लम की भी, तो अगर आप उसको ब्लाइंड सर्च वे में करते हो तो वर्स्ट केस में वो एक्चुअल में कितना हो जा सकता है, ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है अनइनफॉर्म्ड के केस में, और 3 raised to power 20 अप्रोक्सीमेट 3 raised to power 20 सर्च स्पेस पॉसिबल है। तो आप इतनी नोड्स को, इतनी स्टेट्स को अगर आप कंपेयर करोगे, सर्च करोगे, तो ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, बिकॉज ये नियर अबाउट 3 to 3.4 तक बिलियन इतनी स्टेट जो है वो क्रिएट हो रही है। अगर आप 8 पजल की बजाय अगर आप 15 पजल भी लेते हो, ऑल्दो 15 पजल में भी आपके पास मूव 4 ही है, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे 10 raised to power 13 तक जो है वो सर्च स्पेस पॉसिबल हो सकती है। और अगर आप 24 पजल लेते हो तो उसमें आपकी 10 raised to power 24 स्टेट्स पॉसिबल है। तो इतना ह्यूज नंबर अगर आपका बन रहा है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक्सपोनेंशियली टाइम ग्रो कर रही है। और अगर आप इन केस कोई बड़ी गेम लेते हो, लेट्स से चेस लेते हो, तो चेस में जो ब्रांच फैक्टर है, जो बी की वैल्यू है ना वो 35 तक हो सकती है, और जो डी की वैल्यू है वो 80-90 तक ग्रो कर सकती है। तो 35 raised to power 80 दैट इज अ वेरी ह्यूज नंबर। तो इतनी वैल्यूज को अगर आपको कैलकुलेट करना है, इन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, एनपी, दैट इज नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम। और नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम में ऑब्वियसली हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक्सपोनेंशियल है। हाँ, इसमें हमें एक एडवांटेज है कि ये डेफिनेटली ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इतना टाइम मेरा ना लगे। तो अगर हम सॉल्यूशन को क्विक फाइंड आउट करना चाहते हैं, या अगर हम बात करें रूल ऑफ थंब भी हम इसको बोलते हैं, मतलब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं थोड़ा ग्रीडी मेथड से, हम बेस्ट मेथड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, मेरा जो टाइम है वो टाइम मेरा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि ये फाइंड आउट करता है किस वे से, ये फाइंड आउट करता है कि आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस है, आप सारे सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करने की बजाय जो उनमें से बेस्ट है ना, जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू बेस्ट है, आप उस मेथड पे चले जाओ। मतलब अगर इतने सॉल्यूशंस है, अगर इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू लेट्स से 10 है और इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू लेट्स से 15 है, तो जो कम वैल्यू है, जनरली अगर हम डिस्टेंस या टाइम के वे से बात करें तो हम जनरली बात करते हैं कि लोअर द नंबर वो बेस्ट है हमारे लिए। तो लोअर द नंबर, अगर कॉस्ट इसकी लोअर है तो हम क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, मतलब इस तरफ हम एक्सप्लोर करेंगे ही नहीं। वर्स्ट केस में हो सकता है मेरे को इस तरफ भी करना पड़े, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, क्योंकि ह्यूरिस्टिक जो फंक्शंस है ना वो हमें गारंटी देते हैं कि हम आपको गुड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन आए ना आए ये कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो जहां पे भी हम चाहते हैं कि यार नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम को हम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व करना चाहिए, मतलब क्विक सॉल्व करना चाहिए, वहां पे हम यूज करते हैं किसको, ह्यूरिस्टिक फंक्शंस को या ह्यूरिस्टिक वैल्यू को। और यहाँ पे इन्फॉर्म्ड सर्च के जनरली जितनी भी आपकी इन्फॉर्म्ड सर्च की टेक्निक्स है, उनके अंदर हम जो बोलते हैं कि इन्फॉर्म्ड सर्च का मतलब क्या है, हमारे पास एक गाइड है, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन एक्चुअल में क्या होती है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू। ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है कि क्यों हम ह्यूरिस्टिक वैल्यूज को यूज करते हैं, ताकि हम क्विक फाइंड आउट कर सके। हमें पता है कि गुड सॉल्यूशन आएगा, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द थर्ड पार्ट, कि हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे एक मेथड है यूक्लिडियन डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, मतलब लेट्स से अगर आपके पास एक नोड है, स्टार्ट नोड है, लेट्स से दिस इज योर गोल स्टेट, मतलब आपने एक सिटी के अंदर लेके चलो, अगर ये आपकी स्टार्ट स्टेट है, ये आपकी गोल स्टेट है, लेट्स से कि आपको गोल स्टेट तक जाने के लिए आपके पास ये 3 अलग स्टेट्स आ रही है। इसके अलावा और भी हो सकती हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप चाहते हो कि यार गोल स्टेट पे आप पहुंचना चाहते हो मिनिमम कॉस्ट में, मतलब अर्लीस्ट अगर आप पहुंचना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपके लिए एक बेस्ट मेथड क्या है कि आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, लेट्स से अगर ये x1 y1 है, ये इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो हम x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं होल का। तो इसको अगर हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करें तो ऑब्वियसली आपको पता लगेगा कि ये डिस्टेंस जो है वो सबसे मिनिमम आएगा,
क्योंकि ये डिस्टेंस आपको ऑब्वियसली दिखने में लग रहा है कि ज्यादा है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो आपका कम आएगा। तो ऑब्वियसली आप इनको एक्सप्लोर करने की बजाय आप डायरेक्ट इस पाथ पे जाओगे, तो आपको मल्टीपल पाथ जो है वो एक्सप्लोर नहीं करने। लेकिन ब्लाइंड सर्च के अंदर आपको यहाँ पे भी जाना है, यहाँ पे भी जाना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ऑब्वियसली आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। या फिर हम यूज करते हैं लेट्स से मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस बेसिकली हम यूज करते हैं अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना हो। जैसे 8 पजल प्रॉब्लम का अगर हम एग्जांपल लें, 8 पजल प्रॉब्लम में लेट्स से हमारे पास स्टार्ट स्टेट दी हुई है, गोल स्टेट दी हुई है। ये हमारी स्टार्ट स्टेट है और लेट्स से ये हमारी गोल स्टेट है। गोल स्टेट में हम चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये मेरा एम्प्टी है। और जो स्टार्ट स्टेट है लेट्स से आप ले लो 1 3 2 5 6 4 8 7, कुछ भी, कोई भी आपकी स्टार्ट स्टेट हो सकती है। तो स्टार्ट से अगर आपको गोल स्टेट में जाना है तो 8 पजल में जैसा कि मैंने बोला अगर आप ब्लाइंड सर्च करते हो तो 3⁻20 सर्च स्पेस पॉसिबल है, तब जाके आपको जो है फाइनल एक ऑप्टिमल आंसर मिलेगा कि आपको गोल स्टेट अचीव होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो मैं एक फाइंड आउट कर सकता हूं कैसे, विद द हेल्प ऑफ मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आप कैलकुलेट कर लो डिस्टेंस, मतलब जैसे 1 है, 1 अपने राइट पोजीशन पे है, गोल स्टेट के हिसाब से राइट पोजीशन पे है, तो यानी आपको कितनी मूवमेंट करनी पड़ेगी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कितनी मूवमेंट करनी है, कोई मूवमेंट नहीं करनी, 1 अपनी जगह पे है। 2 देखो, 2 एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि गोल स्टेट में यहाँ पे है, लेकिन 2 यहाँ पे है, तो अगर आप इसको एक मूव लेफ्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली वो अपनी राइट पोजीशन पे चला जाएगा, यानी आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 1। ऐसे लेट्स से 3 यहाँ पे है लेकिन आप चाहते हो कि वो यहाँ पे पहुंचे, गोल स्टेट आपकी ये है, तो ऑब्वियसली एक अगर आप मूव कर दोगे तो ये आपको राइट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। 4 देखो, 4 आपका यहाँ पे है और इस केस में यहाँ पे है, तो आपको अगर इसको 2 लेफ्ट मूव कर दोगे, मतलब अगर आप 2 हॉरिजॉन्टल मूव कर दोगे लेफ्ट साइड में तो ये अपनी राइट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो 2 इसका डिस्टेंस हो गया। 5 राइट पोजीशन पे है तो 0। 6 के लिए आपको 2 लेफ्ट यहाँ पे है तो 2 राइट करना पड़ेगा, तो इसमें 2 ऐड कर दो, प्लस 7 के लिए आपको 2 करना पड़ेगा मूव। 8 ऑलरेडी राइट पोजीशन पे है, तो ये आपका जो है वो मैनहट्टन डिस्टेंस आ जाएगा। तो आप मल्टीपल स्टेट्स, इसको आप जब एक्सप्लोर करोगे, इसको जब आप खाली स्पेस को अपर लेफ्ट साइड में मूव करोगे तो मल्टीपल आपकी जो ब्रांचेस बनेगी, उन ब्रांचेस में से आप फाइंड आउट कर लो कि किसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू, किसकी मैनहट्टन डिस्टेंस कम आ रहा है, तो आप उस बात को फॉलो करो। ये आपका एक मेथड हो गया। या फिर इसमें हमें एक और मेथड भी यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स अगर आप कैलकुलेट कर लो, मतलब लेट्स से कि ये देखो 1 अपनी राइट पोजीशन पे, हाँ 2 है नहीं है, तो एक आपकी आ गई, मतलब आपको नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखो 3 अपने राइट पोजीशन पे नहीं है, एक होगी, 2 अपने राइट पोजीशन पे नहीं है, 2, एक अपनी राइट पोजीशन पे है, ठीक है, 4 है राइट पोजीशन पे नहीं, 3, 5 है 6 है राइट पोजीशन पे नहीं, 4 होगी, 7 राइट पोजीशन पे है नहीं, 5 होगी, 8 राइट पोजीशन पे है, यस राइट पोजीशन पे है। तो यानी आपकी जो टोटल मिसप्लेस्ड जो टाइल्स वो कितनी है, 5। जब आप इसको ब्रांचेस में कन्वर्ट करोगे, मल्टीपल ब्रांचेस बनाओगे, तो आप मिसप्लेस्ड फाइंड आउट कर लो, जिसमें नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड आपकी कम होंगी वो वाला पाथ आप एक्सप्लोर कर लोगे, ताकि आपको कम टाइम में कम कॉस्ट में अपना सोल्यूशन जो है वो मिल जाए। तो मल्टीपल वेज है, ये सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस हम यूज कर सकते हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस यूज कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स हम यूज कर सकते हैं। तो इन मेथड से हम एक अनुमान लगा रहे हैं, एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, या आप कह सकते हो कि रूल ऑफ थंब की तरह कि हाँ यार मैं इस तरफ जाऊंगा क्योंकि ये मेरे को मिनिमम पाथ में लेके जा रहा है। लेकिन लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं, हम व्हाट इज दिस, व्हाई वी यूज, हाउ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ह्यूरिस्टिक में हमेशा याद रखना कि इट ऑलवेज गिव्स द गारंटी टू फाइंड द गुड सॉल्यूशन, बट इट डज नॉट गिव द गारंटी टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल आपका ब्लाइंड सर्च जो है वो देगा, ग्रीडी जो है वो आपको ऑप्टिमल देगा या नहीं देगा ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, गुड सॉल्यूशन की गारंटी देता है। एक सिंपल से एग्जांपल से देखो, जैसे हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ऑब्वियसली आप यही पाथ फॉलो करोगे क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो इसके कंपैरेटिव या इसके ऑब्वियसली कम है। लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में अगर आप लेके चलो, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो बहुत रेयर चांसेस होगा कि आपको स्ट्रेट लाइन जो है वो मिलेगी,
या स्टेट पाथ मिलेगा। लेट्स से आप ये पाथ फॉलो करने लगे और फ्यूचर में जाके आपको पता लगा आगे जाके कि यहाँ पे तो माउंटेन है, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है, माउंटेन है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप यहाँ पे जाके इस तरीके से पाथ फॉलो करोगे, तो इससे बेटर क्या है, हो सकता है कि ये पाथ या फिर ये पाथ आपको मिनिमम डिस्टेंस में ले जाए। तो ये एक मेथड्स है, दैट्स व्हाई इट डज नॉट गिव द गारंटी टू फाइंड द ऑप्टिमल और गुड सॉल्यूशन की गारंटी देता है। तो मेन हम ह्यूरिस्टिक का कब यूज करते हैं या क्यों यूज करना चाहिए, व्हेन वी वांट द सॉल्यूशन क्विकली, जब हम चाहते हैं कि एनपी की बजाय हम उसको पॉलिनोमियल टाइम में कन्वर्ट कर सके। हाँ, वर्स्ट केस में तो ये भी जा सकता है नॉन पॉलिनोमियल में, लेकिन नॉर्मल एवरेज या बेस्ट केस में कह सकते हो कि ये बेटर परफॉर्म करेगा, बेटर इन टर्म्स ऑफ टाइम एज कंपेयर टू द ब्लाइंड सर्च, या जिसको हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स मेथड, या जिसको हम बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च। तो इन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर हम यूज करते हैं ह्यूरिस्टिक, जिसके अंदर हम ह्यूरिस्टिक डीएफएस, हिल क्लाइंबिंग है, ए स्टार एल्गोरिथम। Okay, I hope you understood this one. हे लक्षात आलेलं असेल सगळ्यांना. Heuristic search means to find the problem quickly or the with minimum cost or the minimum distance. We can say that heuristic search. Now there are different techniques to solve. Again, we have seen the one sales traveling sales problem here. Means if salesman want to travel one city of the number of cities, then that salesman must visit one. Okay, means suppose you want to travel with n cities, then it will possible solutions. Okay, possible solution would be n factorial or the exponential of that n. Means solutions are many we can find, but with the help of heuristic search we can find the best solution. Okay, the known solution to get the good solution, we can say that, of that problem. Next, there are different methods of heuristic search technique. First one is the hill climbing technique. In this hill climbing technique, okay, suppose continuously I will just open that. Suppose one problem is there, again there is number of solutions like this only. Okay, one problem, there is solutions, different solution, each solution having again solutions. In hill climbing solution, okay, with blind minded we are moving with one of the path, but in this, okay, there is one condition, we cannot move backward. ओके, त्या केसमध्ये काय येतं, तर एक ब्रांच धरली तर त्या ब्रांच थ्रूच मी काय करणार आहे, तर हिल क्लाइंब मध्ये मूव्ह होत जाणार. आता हिल क्लाइंब का म्हणलेलं आहे, तर सपोज ओके विल अंडरस्टूड, ओके, एक डोंगर आहे आपल्या समोर, एक डोंगर आहे आणि त्या डोंगरावरती आपल्याला डोळे बांधून वरती चढायला सांगितलेले. ओके, म्हणजे काय असणार आहे त्या ठिकाणी, तर सपोज दिस वन इज द, ओके, डोंगर आहे आपला हा आणि ह्या डोंगरावरती आपल्याला डोळे बांधून चढत आहे. ओके, आता जोपर्यंत फ्लॅट सरफेस येत नाही तोपर्यंत आपल्याला काय करायला लागणार, तर ओके आपण अपवर्ड साइडलाच मूव्ह होतोय आपण सांगतोय त्या ठिकाणी. ओके, नाउ सर्टन स्टेट, ओके, एक अशी स्टेट येईल की त्या ठिकाणी आपली जे काही पाय आहे तर एक फ्लॅट सरफेस किंवा ग्राउंडला टच होतील, फ्लॅट ग्राउंडला सरफेसला टच होतील. तर आपण त्या ठिकाणी काय म्हणू, तर त्या ठिकाणी मॅक्झिमम, ओके, मॅक्झिमम पॉसिबल सोल्युशन आपल्याला त्या ठिकाणी किंवा त्या ठिकाणी मॅक्झिमम रीचला आपण पोहोचलेलो असेल, म्हणजे डोंगरावरती वरती एकदम टोकाला आपण पोहोचलो असेल. आणि तेच म्हणजे काय असणार आहे, तर जर आपण डोळे उघडले तर आपल्याला लक्षात येईल की तिथे आपण मॅक्झिमम पॉसिबल सोल्युशनला पोहोचलेलो आहे. बरोबर, मग अशा जर बघितलं तर आपण काय म्हणू शकतो, तर तिथे डोळे वरची आपली पट्टी काढली तर आपण पुढच्या जर डोंगराकडे बघितलं तर आपल्याला वाटतं की ह्या डोंगरापेक्षा हा डोंगर काय आहे, तर मोठा आहे. मग त्यासाठी आपण काय करू शकेल, तर हे पॉसिबल, आता पाठीमागे जाऊ शकत नाही. ओके, मग पुढे आपण डाऊनवर्ड साइडला आपल्याला जर पुढे जायचं असेल तर आय हॅव टू अगेन रीच टू द, ओके, द फर्स्ट प्रॉब्लेम स्टेटमेंट अँड देन वी हॅव टू मूव्ह फर्दर. ओके, त्यानंतर आपल्याला प्रॉब्लेमच्या दुसऱ्या सोल्युशन किंवा दुसऱ्या ब्रांच कडे जायला, म्हणजे लक्षात येते. म्हणजे ह्या ठिकाणी एक प्रॉब्लेम आहे, त्या प्रॉब्लेमला ब्रांचेस आहेत, दोन सोल्युशन आहेत. आता एक मी पकडलं म्हणजे हे
आय विल गेट द सोल्युशन. सपोज आय वरती सोल्युशन असेल तर आयला सोल्युशन मिळालं तर ह्या डोंगरावरती बऱ्याचशा स्टेप्स फॉलो करून मी ह्या डोंगरावरती गेलेले डोळे बांधून. आता हे फ्लॅट सरफेस आला तिथं ओपन केलं डोळे, तर मला वाटलं की हा जर पाथ फॉलो केला असता तर हे डोंगर आपल्याला ह्याच्यापेक्षा मोठा किंवा ह्याच्या लवकर आपण ह्या ठिकाणी ह्या डोंगरावरती पोहोचलो असतो. ओके, लक्षात येते. म्हणजे त्या ठिकाणी काय असणार आहे तर ब्लाइंडेड माइंड. ओके, वी कॅन फॉलो वन पाथ टू गेट द सोल्युशन, बट सर्टन स्टेट there is one condition in that. Okay, we cannot move backward to that position. Backward position ला आपण त्या ठिकाणी मूव्ह करू शकणार नाही. Okay, just we will understood that one. Hill climbing algorithm is a local search algorithm which continuously move in the direction of increasing elevation. म्हणजे तो काय करणार आहे तर त्या अल्गोरिदम मध्ये तर एकाच डायरेक्शन इन्क्रीज होत राहील टू फाइंड द पीक ऑफ द माउंटेन. एखाद्या माउंटेनचा पीक येईपर्यंत जोपर्यंत एकाच डायरेक्शनने मी त्या ठिकाणी मूव्ह करेन और बेस्ट सोल्युशन टू द प्रॉब्लेम. जोपर्यंत बेस्ट सोल्युशन मिळत नाही तोपर्यंत त्या ठिकाणी एकाच डायरेक्शन तो मूव्ह होत राहील. It terminates when it reaches a peak value where no neighbors has a higher value. Okay, next, hill climbing algorithm is a technique which is used to optimizing the mathematical problem. One of the widely discussed example of hill climbing algorithm is traveling sales problem, in which we need to minimize the distance traveled by the salesman. Okay, we can use this technique for salesman problem to find the shortest route. It also called greedy local search, as it's only look to its good immediate neighbor state, not beyond that. Okay, a node of hill climbing algorithm has two components which are state and value. Hill climbing is mostly used when a good heuristic is available. In this algorithm, we don't need to maintain and handle the search tree or graph, as it only keep a single current state. Okay, now some local maximum म्हणजे ह्या ठिकाणी जर बघितलं तर यू विल गेट आपल्याला माहित नाही की हे ऑप्टिमल सोल्युशन असेल, परंतु आपण त्या ठिकाणी काय असणार आहे तर वी हॅव रीच टू द दॅट माउंटेन टॉप. Okay, we have reached to the mountain top. We cannot know the whether we have reached the optimal solution. Means we can say that it is local maximum. Okay, how we can define local maximum? Local maximum state which is better than the neighbor state, but there is also another state which is higher than it. Global maximum, the global maximum कशाला म्हणणार आहे त्या ठिकाणी तर this is the highest or the optimal solution where I can get this one. We can say that global solution. Okay, a global maximum best possible state space landscape. It has the highest value of object function. Next one, current state. Current state means suppose the persons are moving up to this. Okay, this one is the current state of that state of that hill climbing. Okay, means it is state landscape diagram where agent is currently present. Flat local maximum, it is a flat space landscape where all neighbor states current state have the same value. Means you can see here this neighbors having the same current values. Yeah, this triangle and this triangle having the same current values. Okay, this one it is called as a flat local maximum. And shoulder, it is the Pluto region which has a unfilled edge. Suppose if I draw three-dimensional diagram here, suppose this edge is downward and another edge is upward, means this flat surface having some inclination, that is nothing but Pluto, we can say that. Okay, these are the some problem with hill climbing. Which are the problem? A local maximum is the peak state landscape which is better than each of other neighbor state. Means this local म्हणजे त्या ठिकाणी तर एक असं सोल्युशन तर बाकीच्या सोल्युशन पेक्षा हे बेटर असणार आहे किंवा गुड सोल्युशन असेल, बट इट इज नॉट ऑप्टिमल. ओके, ते ऑप्टिमल सोल्युशन नसणार, बट देर इज अनदर स्टेट ऑल्सो प्रेझेंट विच इज हायर दॅन द लोकल मॅक्झिमम. ह्यापेक्षाही हायर असू शकेल. दिस वन इज द प्रॉब्लेम विथ वन हिल क्लाइम्बिंग. म्हणजे हे प्रॉब्लेम आहेत, हे तीन प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी येऊ शकतात.
A Pluto is the flat area of the search space in which all the neighbor state of the current state contains the same value. म्हणजे त्या ठिकाणी काय असणार आहे, एक फ्लॅट सरफेस असेल, त्या डोंगरावरती फ्लॅट सरफेस असेल तर प्रत्येक ह्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे तर सेम असू शकेल बऱ्याच वेळेस. बेस बिकॉज ऑफ दिस अल्गोरिदम डज नॉट फाइंड एनी बेस्ट सोल्युशन. म्हणजे त्या ठिकाणी काय असणार आहे तर each branch having okay one same value, म्हणजे cost of value is same, means we can say that S to A 5 किलोमीटर, S to B 5 किलोमीटर, means A and B having the same state space. ओके, म्हणजे त्या ठिकाणी आपण काय म्हणतोय तर ते काय असणार आहे तर सेम व्हॅल्यू तुम्हाला त्या ठिकाणी भेटणार आहे. Does not find any best solution to move a hill climbing search might be lost in the Pluto area. Next one, rigid, a special form of local maximum. It has an area which is higher than its surrounding area. Suppose if I draw the three-dimensional figure here, you will find this one is the lower level and the another side is the higher one, but itself has a slope and cannot reach a single node. Okay, this one, these are the three problems it may occur in the हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लेम. ओके, हिल क्लाइंबिंग मध्ये हे तीन प्रॉब्लेम तुम्हाला मेजरली येऊ शकतात. ओके, नाउ वी विल वॉच दॅट ओके हाऊ ऍक्च्युअली इट इज कॅल्क्युलेटेड. ओके, वी विल सी दॅट. ओके, यू विल अंडरस्टूड दिस वन. हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है. इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, और इस वीडियो में हम इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे. तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. तो स्टार्ट करते हैं सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ लोकल सर्च एल्गोरिथम. मतलब इसको अपनी लोकल डोमेन की नॉलेज है, पूरी ग्लोबल डोमेन की, पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम की कोई भी नॉलेज इसको नहीं होती. दूसरा, ग्रीडी अप्रोच. जब तक इसको बेस्ट मूव मिलती है तब तक ये चलता जा रहा है, बेस्ट मूव मिलनी बंद हो गई तो ये वहां पे स्टॉप कर जाएगा. थर्ड, नो बैक ट्रैकिंग. मतलब अगर इसको बेस्ट मूव नहीं मिल रही तो ये बैक ट्रैक नहीं कर सकता. इसको हम आगे जाके एग्जांपल से डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे इसका सिंपल सा एल्गोरिथम है. जस्ट वी आर स्टार्टिंग विद द इनिशियल स्टेट. कोई भी प्रॉब्लम हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे, जब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम क्या कर रहे हैं, न्यू ऑपरेटर मतलब न्यू नोड फाइंड करते जा रहे हैं. जैसे अगर हमने यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल से देखे तो ये मेरी इनिशियल स्टेट है, उसके आगे मेरे पास लेट से 3 स्टेट्स है, मतलब 3 इसकी ब्रांचेस है. अब इन 3 ब्रांचेस में से इसने जो है वो बेस्ड ऑन देयर ह्यूरिस्टिक वैल्यू, बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट, जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर ह्यूरिस्टिक, हमने क्या किया, तीनों में से बेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है. इसमें बीम विड्थ क्या होती है, 1. बीम विड्थ 1 का मतलब है कि इन तीनों में से जो भी बेस्ट है ये सिर्फ उसको आगे एक्सप्लोर करेगा, बाकियों को भूल जाएगा. मतलब इनको ना तो हम मेमोरी में सेव कर रहे हैं, इनमें से बेस्ट ये था तो आगे हम इसको एक्सप्लोर किया. अब लेट्स से ये 3 प्रॉब्लम आगे, मतलब ये 3 आगे जाके ब्रांचेस है. अब इन तीनों में से लेट्स से अगर ये बेस्ट है तो इसको आगे एक्सप्लोर करेगा, इसको आप भूल जाओ. तो ये सिंपल सा फंडा है किसका, सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का. तो ये लाइन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. My job is to make college easier. स्टेट देन इट इज अ न्यू करंट स्टेट. मतलब आप चलते जा रहे हो, जब तक आपको बेटर स्टेट मिलती जा रही है तब तक आप आगे चलते जाओ. बेटर स्टेट मिलनी बंद हो गई तो अब वहां से आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते. ये एक सिंपल से तरीके से काम करता है, क्योंकि इसका नाम भी क्या है, हिल क्लाइंबिंग. हिल क्लाइंबिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप जो है सिंपल पहाड़ चढ़ते जा रहे हो लेकिन ब्लाइंड फोल्डेड. अब ब्लाइंड फोल्डेड मतलब आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है और आप पहाड़ चढ़ते जा रहे हो. तो उसमें हमारे पास बेस्ट मूव क्या है कि जब तक आप ऊंचाई पे जाते जा रहे हो, जब तक आप ऊपर चढ़ते जा रहे हो तब तक तो आप चलते जाओगे. अगर आपको बीच में कहीं पे लगे कि यार आपका पैर नीचे की तरफ जा रहा है तो वहां पे आप नहीं जाओगे. तो जब तक आपका पैर ऊपर की तरफ जाता जा रहा है आप बेस्ट मूव जो है वो फॉलो करते रहो. एक पॉइंट पे जाके
आपका जो है वो पैर स्टेबल हो जाएगा, मतलब ना तो वहां पे नीचाई ना वहां पे ऊपर की तरफ आप जा सकते हो, तो वहां पे जाके आप क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे, तो वो आपके लिए क्या बन गया, बेस्ट पाथ बन गया। तो यहाँ पे आपने इस पाथ तक गए तो आपने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अचीव कर ली। ऑल्दो यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हम यहाँ पे आगे जाके डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है जस्ट टू सेव द टाइम। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये स्टार्टिंग है और ये गोल स्टेट है। अब स्टार्टिंग स्टेट से मेरे पास ये तीन ऑप्शन है, मैं इन तीनों में से कोई भी आगे मूव कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरे को मैंने क्या चेक करना है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू। अब मैंने ह्यूरिस्टिक वैल्यू चेक की तो इस स्टेट की ह्यूरिस्टिक है 4, इसकी 5, इसकी 6, तो मैंने करना क्या है, मैंने एक चूज करनी है बेस्ट, मतलब इन तीनों में से करंट स्टेट कौन सी है मेरी, ये, तो करंट स्टेट से बेटर कौन सी है, ये लाइन, सिर्फ आपको बस ये लाइन पे फोकस करना है। इफ द स्टेट इज बेटर देन द करंट स्टेट, तो देखो इन तीनों में से बेटर कौन सी है, ये बेटर है, नहीं ये तो बराबर वैल्यू है, बेटर है, नहीं ये तो और ज्यादा बढ़ गई ह्यूरिस्टिक वैल्यू, हमें कम चाहिए, मतलब कॉस्ट हमें कम से कम कॉस्ट में हमने गोल स्टेट पे पहुंचना है, तो बेटर स्टेट कौन सी है, ये वाली, तो ये कहां मूव करेगा, इस तरफ, तो इसको ये भूल जाएगा ना, तो हम इसको मेमोरी में सेव कर रहे हैं, कुछ नहीं। अब हम आगे जाएंगे, अब इसमें से आगे हम फिर सर्च करेंगे, तो इस तरीके से जो है वो मूव करता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, हिल क्लाइंबिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप ब्लाइंड फोल्डेड जो है वो, क्योंकि आपको लोकल डोमेन की नॉलेज है, तो ब्लाइंड फोल्डेड अगर आप नहीं होते तब तो आपको पूरे डोमेन की नॉलेज हो जाएगी, कि आपको पता लगेगा कि अच्छा ये पहाड़ है, एक ये पहाड़ है, इस पहाड़ पे चढ़ना, आपको पूरा दिखेगा व्यू। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा व्यू नहीं दिख रहा, क्योंकि आप लोकल सर्च पे काम कर रहे हो। तो लोकल डोमेन में क्या है, आप ब्लाइंड फोल्डेड चढ़ते जा रहे हो, पहाड़ चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, आपकी बेस्ट मूव क्या है, बेस्ट मूव है कि जब तक आपका पैर ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, वो आपकी बेस्ट मूव है। तो एक पॉइंट पे जाके स्टेबल स्टेट पे पहुंच जाओगे, तो वहां पे जाके आपका ना तो पैर ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ है, तब आपको क्या लगेगा कि मैंने गोल स्टेट अचीव कर ली, मतलब मैंने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। तो जैसे ही आपने पट्टी उतारी तो आपको लगेगा वाओ मैंने तो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कैन बी व्हाट, कि देयर इज अनदर हिल, देयर इज अनदर हिल जिसकी ऊंचाई जो है वो, जिसकी वैल्यू इससे भी ज्यादा है, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रही है। लेकिन अब आप इसको नहीं अचीव कर सकते, क्यों, क्योंकि ये तब तक काम करता है जब तक आपको करंट स्टेट से बेटर स्टेट मिलती है। तो आपको ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अचीव हो गई, तो अब आप मिनिमम की तरफ नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए आपको पहले मिनिमम में जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, तो नीचे ये नहीं जाएगा। तो ऑल्दो ये हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम अगर हमने सॉल्व करनी है या 8 क्वीन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कई प्रॉब्लम्स में अच्छा काम करता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम है। हम सारी स्टेट्स को मेमोरी में नहीं रख रहे, हम सिर्फ जो बेस्ट स्टेट है उसको मेमोरी में रख रहे हैं, बाकियों को हटा रहे हैं। तो जब तक बेस्ट आपको मिलता जा रहा है तब तक तो गुड है। तो यानी ये पूरी वैल्यू डिपेंड करती है ह्यूरिस्टिक के ऊपर। अगर आपको ह्यूरिस्टिक अच्छा मिलता जा रहा है तब तो आप मूव करते जाओ, लेकिन यहाँ पे लोकल मैक्सिमम मतलब आपने मैक्सिमम अचीव कर लिया, लेकिन क्या वो ग्लोबली मैक्सिमम है, नहीं, ग्लोबली मैक्सिमम तो ये है, तो ये आपका अचीव नहीं होगा। तो ये फंडा है किसका, ये आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड अ लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम। तो यही प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे भी आपको यहाँ पे दिखाई है। ये प्रॉब्लम जो है ऑल्दो ये थ्योरेटिकल ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि लोकल मैक्सिमम का मतलब क्या है, कि आपने 5 स्टेट से स्टार्ट किया, आपकी ह्यूरिस्टिक है 5, करंट स्टेट में वैल्यू कितनी है 5, तो आपको इससे बढ़िया वैल्यू चाहिए, मतलब आप ऑब्वियसली बढ़िया वैल्यू का मतलब है कम ह्यूरिस्टिक में, कम कॉस्ट में पहुंचना चाहोगे, तो आप 4, 5, 6 में से किसको चूज करोगे, ऑब्वियसली 4 वाली वैल्यू को चूज करोगे। तो आपने इसको हटा दिया, मेमोरी में कोई सेव नहीं किया, इसको भी मेमोरी में सेव नहीं करते, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बेटर होगी, क्योंकि हम सिर्फ एक बेस्ट मूव की तरफ चलते जा रहे हैं। अब लेट्स से इसको आगे आपने एक्सप्लोर किया, जब इस स्टेट को एक्सप्लोर किया, अब करंट स्टेट आपकी 4, तो करंट स्टेट इस पे जब आपने नेक्स्ट स्टेट को एक्सप्लोर किया तो अरे ये तो 5 पे लेके जा रहा है, मतलब ह्यूरिस्टिक आपकी बढ़ गई। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, एल्गोरिथम कह रहा है इफ इट इज बेटर देन द करंट स्टेट देन इट इज अ न्यू करंट स्टेट। तो यहाँ पे न्यू करंट स्टेट तो बनेगी नहीं, क्योंकि ह्यूरिस्टिक वैल्यू बढ़ गई, तो ये यहीं पे क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। That is called a local maximum problem. Then plateau या जिसको बोलते हैं flat maximum, ये words एक्चुअल में ना हिल क्लाइंबिंग के ऊपर ही है। हिल क्लाइंबिंग का मतलब क्या है कि जब आप चढ़ते जा रहे हो तो एक फ्लैट पॉइंट आपको मिल गया,
फ्लैट पॉइंट का मतलब है कि जहां पे आपके जो नेबर्स हैं, मतलब जितने भी आपके नेबर्स हैं, उन सारे नेबर्स की वैल्यू जो है, लेट्स से सबकी वैल्यू सेम है 5 5 5। अब इस पॉइंट पे आप किसको चूज करोगे? जब सारे ही आपको सेम ह्यूरिस्टिक वैल्यू दे रहे हैं तो आप उनमें से किसको चूज करोगे? तो अब भी ये क्या है, आगे आंसर नहीं देता, मतलब यहाँ पे भी ये क्या कर जाता है, स्टॉप कर जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है किसकी, प्लेट्यू या फ्लैट मैक्सिमम प्रॉब्लम इन द हिल क्लाइंबिंग। और थर्ड है रिज। रिज का मतलब क्या है, जब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे आपको ये डायग्राम में 3D डायग्राम में क्लियरली दिखेगा, लेट्स से कि आप एक डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हो, मतलब यहाँ पे आप चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, जब तक आपको बेस्ट मूव मिलती है। और बेस्ट मूव मतलब क्या है कि जब तक आपका पैर जो है वो आगे की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ है, वो आपकी बेस्ट है। इसका मतलब आप पहाड़ चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, एक पॉइंट पे जाके आप पहुंच गए, तो यहाँ पे जाके आपने अपनी पट्टी उतार दी, मतलब मैं मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। अब इसके बाद तो ऑब्वियसली आपकी मिनिमम वैल्यू स्टार्ट होगी, तो वहां पे तो आप जाओगे नहीं। लेकिन रिज का मतलब क्या है, रिज मतलब कि जो ए और बी के है ना, ये बी ए से भी ऊपर है। अब ये बी जो है वो ए से ऊपर है, लेकिन अभी यहाँ पे पहुंच के ये डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता, एक डायरेक्शन में ही मूव करता जा रहा है। तो ऑल्दो यहाँ पे बी पॉइंट इससे ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में ही क्या करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है। ऑल्दो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ लोकल मैक्सिमम ओनली। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम, दिस इज एल्गोरिथम। ये आपको मैंने एग्जांपल से यहाँ पे क्लियर कर दिया कि लोकल मैक्सिमम की प्रॉब्लम होती क्या है और कैसे हम एक्चुअल में इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो जो हमने बीम सर्च डिस्कस किया, बीम सर्च में जो बीटा की वैल्यू है वो 2 3 4 5 मल्टीपल हो सकती है, लेकिन हिल क्लाइंबिंग में बीटा की वैल्यू 1, मतलब आपको सिर्फ एक बेस्ट मूव पे चलना है, बाकियों को भूल जाओ, बाकियों को आप सिंपली स्किप करते जाओ। तो I hope you understood this hill climbing. Okay. This is about, next one is the best first search technique. Okay, before that, branch and bound search technique, best first search technique. There are two techniques now remaining. If you finish this two search technique, we can finish our chapter. Means we need one more lecture to finish this. Okay, might be you understood. Today we have seen this heuristic search. What do you mean by heuristic search? How we can do? And next we have one more technique we have seen, hill climbing search technique, with the help of traveling cells problem. And we have seen the some of the problem with the hill climbing check problem. If you have any problem, you can ask. Otherwise, you can write your roll number in chat box and you can leave the meeting. No problem. कोणाला प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकता, नसेल तर तुम्ही मीटिंग रोल नंबर लिहून मीटिंग एंड करू शकता. Yes, if anybody having any problem, please let me know. One more lecture we need to finish this unit, and from next mostly tomorrow we will finish this unit and we'll start the next unit. If anybody having any problem, please let me know. आहेत का कोणाला प्रॉब्लेम नसेल तर ओके, I will end.